Hello and welcome everyone. Good evening guys. सबसे पहले congratulations to those who were able to clear prelims 2018 and at the same time I can empathize with the people who are not able to clear prelims. So guys, I would like to tell this thing in the beginning itself that हार और जीत this game का this life का एक part है. So just take it in your stride कि if you are not able to clear prelims, you were not able to clear this prelims. So next time with more preparation, with more solid preparation for not just prelims but for mains also, for your optional also, for your essay paper also, the neglected areas, right? And for those who are able to clear prelims 2018, उनके लिए भी हम बाद में बात करेंगे. 3-4 चीजें इस टॉपिक में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. 3 up to 4 टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट फॉर ऑफिस गोअर्स. सो ऑफिस गोअर्स के लिए चैलेंज रहता है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए. Many of you have been requesting since last 1 to 2 months, 1.5 months now. So I was not able to take the live session because of my occupation with plus courses and my own preparation. So ये चीज है. बाकी काफी लोग अभी जुड़े हैं last 1 minute में. So I would like to congratulate all of you again, those of you who are able to clear prelims, and जिनका नहीं हुआ है उनके साथ में I can empathize guys. So let's begin with the first part of this video. Next 5-7 minutes में I would like to dwell upon the precautions, the steps that people who are preparing alongside their job, they need to keep in mind. सबसे पहले planning, right? आपकी advantage में ये है कि आप employed हो. एक factor है, cushion factor है कि yes you are employed and you can financial कोई problem नहीं है. और दूसरी चीज जो हम वीकनेस मान लेते हैं ऑफिस गोअर्स की, ये है कि मेरे को पूरा टाइम नहीं मिल रहा है. आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम एज द अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग 24/7. Well, nobody prepares 24/7. Effectively, if you ask people who devote their entire day to this preparation, they also must be studying effectively for 7 to 8 hours only, right? So 7 to 8 hours means maximum 50 hours, 60 hours a week, right? तो 50 to 60 hours a week के लिए अगर हम देखें, weekends, Saturday and Sunday, use them to your advantage. तो आपका टारगेट सिर्फ यही है कि 50 to 60 hours हमें क्लॉक करने हैं somehow. Okay, using the travel time, using you can wake up early in the morning, and फिर उसमें आता है कि essential and non-essential material. We have to choose. We have to be very careful while reading the material. Do not pick up a book which you think you cannot read again, right? Which you won't be able to revise. So understand that you've got a time constraint, so you have to be very selective. And this time management thing applies equally to those also who want to learn this art of time management. हम लोग जो full time prepare कर रहे हैं, we have got the luxury of time and we end up wasting a lot of time. So use these things to your advantage कि सुबह जल्दी उठ सकते हो और सुबह वो एक्टिविटी करो जो ऑफिस गोअर्स हैं या जो टाइम इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, जो चीज आपको लगता है कि which will take you 2 to 3 hours, right? So and when you are in your office or when you are traveling, तो जो less demanding activity है for which you do not require so much of concentration, you should focus on that rather than कि हम सारा कुछ पढ़ लें. और we should not start with the while in your office hours. Suppose there's a time of one hour, right? तो 1 to 2 आपका lunch है या 2 to 3 lunch है. बैंकिंग जॉब में है काफी सारे, तो उस केस में वही एक्टिविटी स्टार्ट करो जो आप half an hour में कंप्लीट कर दोगे. Why do you start with geography का, monsoon और ऐसे topics which you won't be able to complete in half an hour or one hour's time? And while coming back, use these applications to your advantage. अब यहाँ पे applications में आता है कि हम reading applications use करें या फिर watching videos. तो देखो, video sometimes to many people I've seen it is too time consuming, right? So be careful कि आपको क्या सूट करता है. If your reading speed is good enough, so you should be going for reading rather than spending time on video. If you think that you are not able to understand because of the commotion in the means of travel or commutation that you are using, so in that case you should use the video mode कि कान में ईयरफोन्स लगाए और आप आराम से सुन रहे हो वीडियोस को. तो चूज केयरफुली. छोटी छोटी सी चीजें हैं गाइस, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी. और बी सिलेक्टिव while reading the material और have crisp notes. A4 शीट पे आप नोट्स बना सकते हो कि this is what you are going to cover in your office hours. वापस आते टाइम और मेन चीज बचती है आपका सैटरडे एंड संडे. और फिर आते हैं सोर्सेज क्या क्या रेफर करनी चाहिए. सबसे पहले फोकस ऑन दी एसेंशियल्स लाइक एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. Then revising them multiple times. Don't dare to pick up a book. Don't make the mistake of picking up a book which you think you won't be able to revise, right? तो उसमें कोई फायदा नहीं है उसका आपका.
नाउ इफ ऑफिस आवर्स परमिट देन रीड हिंदू इन एन आवर। ऑफिस में आप हिंदू पढ़ सकते हो, और जो काफी ज्यादा वर्बोसिटी ओरिएंटेड आर्टिकल्स रहते हैं, एडिटोरियल्स रहते हैं, डू नॉट रीड देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आर एबल टू मेक आउट कि ये आर्टिकल टाइम लेगा या इसमें कुछ ज्यादा थॉट प्रोसेस कुछ इन्वॉल्व है, पोस्टपोन दैट। उस पे आप मार्क कर दो कि दिस यू आर गोइंग टू रीड। तो एप्लीकेशंस कह रहा है, आप हिंदू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी जगह व्हाट्सएप वगैरह या you can uninstall these unnecessary applications till the time keeping the goal in your mind, till the time you are preparing for this exam। और फिर इसमें एक एडवांटेज आती है, वैसे जो लोग 24/7 प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हिंदू रीड करना डेली बेसिस पे इट्स इजियर, रिलेटिवली इजियर। बट अगर हम ऑफिस गोअर्स की बात करें तो यू कैन यूज दीज मैगजीन्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो मैगजीन्स हैं, यूज इट टू योर एडवांटेज। बाकी अब उसमें से पेपर आएगा या नहीं आएगा ये एक अलग बात है। वीकेंड स्टार्ट होने से पहले ही, फ्राइडे को ही, while your office gets over in the evening, so decide while going back कि what are you going to do in these 2 days, Saturday and Sunday। 52 वीक्स हैं, तो ये चीजें आपके पास में पहले रेडी होनी चाहिए। एंड जो आपकी हॉलीडेज रहती हैं, यूज देम टू योर एडवांटेज बिफोर प्रीलिम्स। 15 दिन 10 दिन की छुट्टी आप प्रीलिम्स से पहले ले सकते हो, रादर देन वेस्टिंग योर हॉलीडेज। जो भी ऑफ्स आपके अवेलेबल हैं वो आप उस टाइम पे ले सकते हो, जबकि आपके पास जब प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग और उसके पहले फिर मेंस के टाइम पे आप ये जो हॉलीडेज वगैरह आपकी बचती हैं उसे तब अवेल कर सकते हो, रादर देन यूजिंग देम फॉर योर सोशल ओकेजन्स और किसी और की शादी में जा रहे हो। ये सब चीजें छोटी छोटी सी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद में ऑप्शनल की चॉइस, जब हम ये वर्किंग गाइज के लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शनल की चॉइस ऑल्सो मैटर्स। व्हाइल अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स या फिर कोई और सब्जेक्ट है, that will demand कि आपको concentration से करना पड़ेगा। Humanities वालों के लिए it is relatively easier। Now coming to other points, positive ये है आपके पास में कि आपकी concentration, efficiency versus effectiveness की बात है यहाँ पे। तो in your case, because you know you are working under a boss, और तो जो effectiveness level होता है वो office goers का, job goers का थोड़ा ज्यादा रहता है, rather than the people जो college pass outs हैं। I'm not saying कि college pass outs पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज जो फ्लिकरी माइंड है, व्हाट्सएप का मैसेज बजा और उठ गए, तो ये सब चीजें ऑफिस गोअर्स के केस में कम होती हैं। तो यूज दैट काइंड ऑफ इफेक्टिवनेस, दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन टू योर एडवांटेज व्हिच यू आर गेटिंग थ्रू योर ऑफिस एज अ पार्ट ऑफ योर ऑफिस रूटीन। आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी कंपेयर टू दी नॉन ऑफिस गोअर्स। तो ये सब चीजें हैं। नाउ हैंडी नोट्स होने चाहिए आपके पास में, एक टू डू लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस वीक एंड इन दिस मंथ। अगर वो कवर हो जाता है, मान लो कि 1st of August से 31st of August का आपके पास में टाइम टेबल है, अगर आप उसे 28th August को कंप्लीट कर लेते हो, then you can give kind of go out for a walk, kind of treat yourself well उन दिनों में जिस दिन आपका टारगेट पहले अचीव हो जाता है। और फिर 1-2 दिन 31 जुलाई को ही, जैसे 1 अगस्त के टारगेट आपका रेडी हो जाना चाहिए, 31 अगस्त को ही सितंबर का टारगेट आपका, ये सबके केस में अप्लाई होता है, राइट। तो कुछ सेम जनरल चीजें हैं। ओनली थिंग दैट bogs down the office goers is कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। May have those friends who are working themselves rather than having friends की जो जॉब छोड़ दिया जिन्होंने, या कुछ भी। आपके पास ना एडवांटेज है फाइनेंसेस की। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिस गोअर्स हैं तो वो घर पे बैठ के नहीं पढ़ पाते, इन दी वीकेंड्स आल्सो कुछ काम आ गया, कोई रिलेटिव्स आ गए, तो इन दैट केस यूज द एडवांटेज ऑफ फाइनेंस टू योर सैलरी जो भी आपको मिल रहा है, तो उसमें आप कोई रूम ले सकते हो अपने सेम टाउन में ही। एडवांटेज ऑफ फूड आपको मिल जाएगा, और फिर एडवांटेज ऑफ काइंड ऑफ प्लेस जहां पे कि आप पढ़ सकते हो, या फिर सैटरडे एंड संडे लाइब्रेरी की रूटीन बना सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। और फिर प्रीलिम्स के पहले आंसर राइटिंग नहीं मैनेज कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर ले रहे हो तो मतलब दैट इज मोर देन इनफ इन योर केस। और उसके बाद में ये चीजें आपको बॉग डाउन नहीं करनी चाहिए कि वो 25 घंटे पढ़ रहा है एक दिन में, राइट। तो कोई नहीं पढ़ पाता, 7 से 8 से 10 घंटे, मैक्सिमम 10 आवर्स। तो अगर हम देखें तो भी 70 आवर्स ही हुए वीक के, 70 में से भी 60 आवर्स लगा लो, तो 50-60 आवर्स आपको क्लॉक करने हैं। अगर आप सैटरडे और संडे की अपनी सिटिंग मैक्सिमाइज कर लेते हो तो दिस इज पॉसिबल। नाउ ये चीज है। और जो थोड़े से बल्कि टॉपिक्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, और कोई और टॉपिक है, तो वो आप बाद में ऐसे ही टाइम पे स्टार्ट करो जब आपको पता है कि आप 2 घंटे की सिटिंग दे सकते हो, rather than starting की जब आपके पास में 15 मिनट है लंच टाइम के बाद में। There's no point in starting with a topic like plate tectonics theory of geography
when you've got just 15 minutes of time in your office hours. अब बात करते हैं guys, second जो आज का हमारा टॉपिक है, that is your year long strategy for 2019. इस पे मैं अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी इवन दो एक वीडियो ले चुका हूँ कि हमें 1 जून से अक्टूबर में क्या करना चाहिए. अब ना जुलाई आ गया, तो जुलाई से अक्टूबर में हमें क्या क्या टॉपिक्स फिनिश करने चाहिए. ब्रीफली इन्हें समराइज करना चाहूंगा. सबसे पहले जून से अक्टूबर के टाइम में आपका ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए. ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है, रिगरस आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए. आंसर राइटिंग आप ऑप्शनल की आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर सिलेबस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ह्यूमैनिटीज से ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, तो इन दैट केस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आंसर्स आप तभी इफेक्टिव लिख सकोगे जब आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, तो ऐसे केस में क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में काफी ज्यादा इंटरलिंकेज है. Until and unless you have read paper 1, you won't be able to write answers on paper 2. और पेपर 2 का अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहता है, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो. तो जब तक दोनों आपके टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते, तब तक you won't be able to write better answers. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको सोशियोलॉजी में भी साइड करना है, पॉलिटिकल साइंस में भी साइड करना पड़ेगा, इवन इन पेपर 1 आल्सो. और सिलेबस कवर हो जाने के बाद अगर आप आंसर्स लिखोगे फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, तो उसमें जो इफेक्टिवनेस, जो लेवल ऑफ एनरिचमेंट आएगा, वो सिलेबस खत्म होने से पहले नहीं आएगा. सो फटाफट 2 रीडिंग्स ऑफ योर सिलेबस ऑप्शनल की अलोंगसाइड 1 और 2 एरियाज ऑफ जीएस. चाहे हम बात करें जीएस के, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर यू गेट स्टक विद समथिंग, तो यू आर नॉट एबल टू मूव फर्दर बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. मतलब जो आपका जो कोर एरिया है उसका, जब तक आप वो नहीं समझ पा रहे हो, तब तक आप न्यूज़पेपर से प्रॉपर जो माइलेज है वो डिराइव नहीं कर पाओगे, प्रॉपर एडवांटेज. इवन इफ यू आर रीडिंग डेली बेसिस पे, देन आल्सो यू वुड नॉट बी एबल टू डिराइव द मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ न्यूज़पेपर. सो इन दैट केस व्हाट यू गॉट टू डू इज कि पहले टेक्स्ट जो है जून से अक्टूबर में, जून से सितंबर में, या जुलाई से सितंबर में, पहले लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 14, these keep on appearing in the newspaper day in and day out. So be thorough with those things. Have a few things handy, जैसे कि बेयर एक्ट है या फिर आर्टिकल 14, जैसे you come across in the newspaper, Google it out as to what is the text of article 14, or for that matter article 21, or for that matter article 15, 16 जो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, 17 SC and ST prohibition of atrocities act, और फिर गे राइट्स और ये सब, इनके लिए सेक्शंस वगैरह हमें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ने हैं. मेनी पीपल दे बर्डन देमसेल्व्स विद सेक्शंस ऑफ आईपीसी, 400 सेक्शन 420 रटने बैठ जाएंगे. तो ये सब 420 थोड़ा सा अवॉइड करनी है. बी स्पेसिफिक, राइट. लॉ ऑप्शनल वालों को इतना माइन्यूट डिटेल्स उसमें गैदर करना है. और जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, अगेन skip the stage page altogether. You can skip the stage page or make a list of the topics because you won't get the time to make notes on a daily basis from the newspaper. So what you can do is weekly basis, daily basis पे make a list of the topics कि ये topics important हैं, कि पिछले 7 दिनों में this is the list of topics which have recurrently appeared in the newspaper. That will help you to take a holistic view of the month-long current affairs कि as to this topic was in prominence in the newspaper for last 1 month. And this is what is important for mains. Even if you are standing at 2018, 2018 के आप अगस्त में खड़े हो, जुलाई में खड़े हो, 2019 के या हम बात करें अक्टूबर में मेंस के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो जुलाई 2018 में प्रोमिनेंस में रहा है, या अगस्त 2018 में वो बहुत ज्यादा चर्चा में रह रहा है. तो दिस इज हाउ यू कैन दिस इज द गेस्टिमेशन एक्सरसाइज कि ऐसे आप गेस कर सकते हो टॉपिक्स को. नाउ ये चीज है फोकस टिप्स के लिए गाइस, मतलब इसी में से आप डिराइव कर सकते हो. अगर फोकस टिप्स बताऊंगा तो कोई रेसिपी नहीं है चाय बनाने की या शाही पनीर बनाने की यहाँ पे, राइट. सो दिस इज देयर. नाउ द पॉइंट इज अदर थिंग्स. एक और चीज आती है जीएस मेंस पेपर 4 के लिए. तो सबसे पहले एक तो एथिक्स की रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के लिए, सेकंड एआरसी की. यू कैन डाउनलोड, आई विल प्रोवाइड द लिंक. ये रिपोर्ट का आपका टेक्स्ट है, अगर आप देख पा रहे हो, एथिक्स इन गवर्नेंस, सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फोर्थ रिपोर्ट. इसको 3 बार अगर आप पढ़ लेते हो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड बाय द यूपीएससी एज केस स्टडीज, उसमें से मेजॉरिटी तो नहीं कहूंगा लेकिन 3-4 क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पे आते हैं. और उसके बाद में दिस इज अनदर बुक, लेक्सिकॉन, जो कि आपको हेल्प करती है आपके इन चीजों में.
the definitional aspect, the theory aspect of ethics, integrity and aptitude. फिर आती third book, then that is case studies की ethics, integrity and aptitude by this is the book I recommend की case studies की practice करने के लिए जी सुब्बाराव and P.N. Roy Chaudhary. तो ये books आप इनमें case studies दे रखी हैं. The person, the writer of this book has himself been an IAS officer. तो ये चीजें हैं इसके लिए. और इसके अलावा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 16 लेक्चर्स की एक सीरीज है, राइट, तो वो आप उस पर फोकस कर सकते हो. और हिंदू को जिनका हिंदू पढ़ने का टाइम नहीं लगता है तो बेसिकली स्टेट्स जो पेज है उसे स्किप कर सकते हो. एंड टू लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग हिंदू प्रॉपर्ली, इफेक्टिवली, एनालिटिकल वे में यू कैन विजिट अन अकेडमी. जो लोग मेरे को यूट्यूब से फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, तो अन अकेडमी पे डेली न्यूज एनालिसिस मतलब बीच में मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ माय टाइट शेड्यूल दीस डेज, बट यू गेट टू नो द अप्रोच एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. फॉर एग्जांपल अगर हम ये अभी सेक्शन 497 की बात करें या फिर हम सेक्शन 377 की बात करें जो गे राइट्स की बात हो रही है और आपका अडल्ट्री की बात हो रही है, तो ये दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे अप्लाई होता है. तो आई डेल्ट विद दैट पार्ट 1 ऑफ डेली न्यूज इन दैट with this issue in the part 1 of daily news analysis of I think 11th or 12th of July. तो important जो topics रहते हैं वो I keep on uploading. ऐसा नहीं है कि मैं उन पे skip करता हूँ. Even if there is one part of daily news analysis, but that is highly analytical, right? So you can take advantage of it. That will give you an idea as to what is expected of you. Now NCERTs 3-4 बार आपकी पढ़ लेनी चाहिए, 5 बार पढ़ लो, right? Main से पहले कम से कम 3 to 4 readings of NCERT एक बार आप पढ़ लेते हो, उसके बाद में दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने के बाद मेक नोट्स आउट ऑफ इट. नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जितने ज्यादा कंसाइज हो उतने अच्छे. फर्स्ट टाइम में यू मे नॉट बी एबल टू मेक वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स, ठीक है, तो उसे बार बार रिवीजन करोगे. ओनली नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर नोट्स अगेन. तो उसमें क्या करोगे, उसे समराइज कर दो. ओनली द थिंग्स दैट यू टेंड टू फॉरगेट, मेक नोट्स ऑफ ओनली दोस थिंग्स. देन जो और चीजें आती हैं, यूट्यूब पे देयर इज अ चैनल ऑफ माइन आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, तो आप वहां पे मेरे को उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहां पे ये जो गाइडेंस सीरीज है, मे बी टुनाइट आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो एज टू हाउ टू रीड द हिंदू योरसेल्फ. तो ये एडवांटेजेस रहेगा सबके लिए क्योंकि डिपेंडेंसी क्रिएट करना मतलब एक आप भी डिपेंडेंट होते हो डीएनए पे या किसी भी चीज पे, वो एक ठीक बात है. 2 or 3 मंथ्स के लिए यू कैन अफोर्ड टू डिपेंड ऑन डीएनए और किसी थर्ड सोर्स पे, बट empower yourself before it is like कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने लग जाए किसी और पे, मेरे पे डिपेंड हो रहे हो. तो फटाफट से what you can do is उस वीडियो से you can take maximum advantage. Now having said that, daily news analysis will help you save time in doing that. Basically in the background research that I come up with on a daily basis, doctrine of eclipse क्या है या फिर कभी geography के जो aspects रहते हैं, उन केसेस में it will help you कि आपको उतना टाइम बैकग्राउंड रिसर्च में नहीं स्पेंड करना पड़ेगा उसमें से. और गाइस एक बुक है फॉर द मोटिवेशन व्हिच आई वुड सजेस्ट. वैसे आई डोंट सजेस्ट दीस थिंग्स, तो ये सी यू एट द टॉप एक बुक है, मतलब सस्ती सी बुक है, 200-250 रुपए की होगी. इट विल हेल्प यू. हैव दिस ऑन योर टेबल अलोंगसाइड द एमसी, ये जो आपका प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहता है या मेंस का क्वेश्चन बैंक रहता है. एंड सेम थिंग आई वुड at least cover 2 subjects. Pooja Rawat, there's a relevant query. So she says 1 subject at a time or simultaneously all subjects. So first of all, beginning जो आपका phase है, theory building phase है, concept clearing phase है, in that phase you should be thorough with some things. Okay, have clear deadlines कि 25 days में और 30 days में और 40 days में. Okay, have your own deadline depending upon the comfortability you share with a particular subject. If you are very comfortable with polity, 25 days में पॉलिटी आप रिवाइज कर लोगे और नोट्स बना लोगे. देन यू वुड हैव द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दैट यस माय पॉलिटी इज थॉरो नाउ. एंड देन फिर इकोनॉमी के लिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल गिव योरसेल्फ 30, 35 और 40 डेज की बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आई विल कवर इन दीस मैनी डेज. देन इकोनॉमी का सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ऑल यू नीड इज रिविजंस. 5 to 6 डेज जो भी आप पढ़ते हो उसे 7th डे पे संडे पे रिवाइज करो. और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उस पर्टिकुलर वीक में, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो फिलोसफी का हो, राइट एन एसे ऑन दैट टॉपिक. दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल्स एंड योर coherence in your answers and the organization of the the data, the facts and figures that you have in your mind. तो ये चीज रहती है.
एंड ये बुक मैंने बताई, इसके साथ साथ और भी बुक्स का वीडियो आई विल बी अपलोडिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो समवन इफ यू कैन शेयर द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल हियर. आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा नाम है उसका और चैनल का. जीएस मेंस पेपर 4 हो गया. अब आते हैं फोर्थ पे. फोर्थ इशू जो हमें डील करना है यहाँ पे, दैट इज हाउ टू यूटिलाइज दिस नेक्स्ट 2.5 months फॉर दोज हु आर गोइंग टू राइट मेंस 2018. तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो मेंस के लिए यू नो दोज हु आर लिसनिंग, those who were able to qualify prelims 2018? So any which way, जो आपका मैं इसे समराइज कर देता हूँ फटाफट से यहाँ पे. So guys, इसमें ये रहता है कि एक तो सबसे पहले फोकस ऑन योर ऑप्शनल इन दीज लास्ट 2 to 2.5 months. ऑप्शनल में आपका माइलेज आप ले सकते हो. तन्मय, इट्स ग्रेट. नाउ प्लीज टेल. ओके, नाउ यहाँ पे आप उसमें ऑप्शनल में इतना कोशिश करो कि मैक्सिमम वहां से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल में सर्टेनिटी फैक्टर ज्यादा होता है. एंड देन स्टार्ट यू नो राइट एटलीस्ट 10-15 essays इन दिस फेज, राइट, संडेज में या फिर और ज्यादा जितना भी कोशिश कर सको. एंड देन इसके साथ साथ आंसर राइटिंग, राइट एटलीस्ट 2 to 3 आंसर्स डेली, नॉट ओनली ऑन योर फेवरेट एरियाज लाइक पॉलिटी है जैसे या फिर कुछ और है. Also venture into the areas which you think you are not comfortable with, right? Overcome that phobia. So as I keep on repeating, have surprises in your room rather than having shocks in the examination hall. कि वहाँ पे पता चल रहा है कि पेन रुक रहा है, पेन लड़खड़ा रहा है, तो बेटर ये है कि आप यहीं पे ही अपना सारा फोबिया ओवरकम कर लो, राइट? सो दिस थिंग इज देयर. नाउ इसके बाद आता है कि जीएस और मतलब जीएस मेंस पेपर 1 जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, जीएस मेंस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसको कितना टाइम दिया जाए? पेपर 4 में इजी है रिलेटिवली स्कोर करना. इसमें जो एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं, कभी कभी एथिकल इश्यूज पे एडिटोरियल्स होते हैं, राइट? मिनिस्टर इज बीइंग आस्क्ड टू रिजाइन फॉर द लैप्स इन हिज मिनिस्ट्री और कोई ऐसा टॉपिक जो आता है, तो ऐसे केस में आप उससे जो मॉरल आइडिया आप ले सकते हो, वो चीज आप अपनी एडवांटेज में उसे यूज करो कि इस पे what take are you going to take? Some IAS officer being victimized or he has been suspended for you know prima facie no fault of his in the performance of duties. तो ये सब चीजें जो आप एथिक्स के लिए पढ़ लोगे, उसमें आपको you can you know establish the correlation between the things appearing in the newspaper और between the theory here, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात हो और ये सब चीज हो, राइट? एंड HV रॉय, you are asking अभी के लिए इतना ही था आज के लिए. I will take a special live session probably tonight on how to utilize 80 to 85 days to your advantage before mains 2018. Now syllabus for paper 2 and paper 3 video is also you know already available on my YouTube channel, so वहां से आप उसे देख सकते हो. और supplementing योजना with the Hindu, yes it is necessary. Could you please suggest Hindi or English, which medium will be more effective? This is your personal take, Kanika. So I won't be the right person. You have to decide it yourself. Now हिंदी मीडियम के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें? पेन उठाओ और लिखने लग जाओ. मतलब हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम आंसर राइटिंग में व्हाट डिफरेंस, में क्या डिफरेंस आता है, राइट? तो ये जो फोबिया ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं धर्मेंद्र, आपके क्वेश्चन में एक डर है, उस डर को ओवरकम करो और डर के आगे जीत है. सिंपल सी बात है. Now, should we use simple words or simple words? I will create a video on YouTube or on Unacademy कि glossary क्या है, words जो कि last 3 years से 2-3 years से जो कि न्यूज़पेपर में आते हैं डेवलपमेंट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये सब चीजों का एक वीडियो रहेगा. उसमें सारे वर्ड्स और उनका मीनिंग और उसे कैसे आप how you can use those words to your advantage to write better answer using minimum possible words. Now, are there enough sources for taking literature subject as optional? That depends what literature are you talking about, right? What literature subject are you talking about? Please tell me how to prepare along with college. न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, स्टैटिक पोर्शन ज्यादा से ज्यादा कवर करो जब तक आप कॉलेज में हो. टेस्ट सीरीज तभी देना सही रहेगा जब आपने ऑलरेडी जो है मतलब सिलेबस कवर कर लिया है, राइट? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें? So this group is there, IAS तैयारी with जतिन वर्मा फेसबुक ग्रुप है, तो वहां पे आप यू नो इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स अभी शेयर करने शुरू कर देंगे, तो वो those will be relevant for not just economics optional but also for your you know GS mains paper 3 also.
जिसका भी कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे। ये इस पे वीडियो आ जाएगा। अनअकैडमी वीडियोस जो खासकर मेरे डीएनए के हैं उन पे मैं बता सकता हूँ कि उससे नोट्स कैसे बनाएं। तो आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन अगेन। लाइव सेशन ही रहेगा, अब वीडियोस यूट्यूब पे जो अपलोडेड वीडियोस रहते हैं वो ज्यादा रहेंगे, पीपीटी से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। नाउ will you be planning to start? Yes, I'm planning to start a public administration optional course in coming days. Yes, it will be there, right? So you can rely on me for that. Now PSIR और इकोनॉमिक्स, दिस इज योर पर्सनल कॉल। 2-3 दिन के लिए पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स पढ़ो और इकोनॉमिक्स पढ़ो, उसके सिलेबस के टॉपिक्स की बुक्स देखो। इट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग एज टू व्हाट यू शुड ऑप्ट फॉर, कि आपको क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, पॉलिटी या फिर ये। नाउ सच में बनाने वाला हूँ, सस्पेंस नहीं है, राइट। नाउ विल यू प्लान टू, ये क्वेश्चन मैंने, कुड यू प्लीज सजेस्ट हाउ टू फ्रेम आंसर्स फॉर मेंस? अगेन ज्योति, आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। PIB with your DNA and Yojana, is that enough for current affairs? Yes, that is more than enough, right? Now how to prepare for UPSC 2021? ज्यादा हो गया ये 2019। देखो आपको ज्यादा फोकस स्टैटिक क्वेश्चन पे करना चाहिए अभी, मधुसूदन। नाउ yes, अभी से स्टार्ट करोगे मित्रा सरकार, it will be enough. You've got enough time, pretty sufficient time is available for 2019. Have to follow as my इंद्रानिल PIB रिलीजियसली फॉलो करने के लिए कुछ एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के जिनके वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो। हिंदी लिटरेचर के लिए ओके, आई विल सर्च फॉर दैट। आई कांट कमिट निशांत यहाँ पे। रोहित, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इसके वीडियो के पहले पार्ट में मैंने उसी टॉपिक से डील किया है, राइट। एसए कोर्स कल क्लास है। यस गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि एसए की कल क्लास रहेगी आपकी, जिसका लिंक सुबह 9 बजे, मतलब आपको वीडियो का उसका दिख जाएगा उस कोर्स में है क्या। और 12 बजे, 12 से 1:30 के बीच में जो इसकी एडमिशन लाइंस है वो ओपन रहेंगी। रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी ओपन फ्रॉम 12 noon to 1:30 PM। ऑल यू नीड इज अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का हो, और उसमें कम से कम 2-3 रुपए होने चाहिए, बस। 1 रुपया इसका फी रहेगा। और क्लास का टाइम है कल रात को 9:30 बजे। इसके लिए एनरोल करना जरूरी है। योजना फॉर जून 2018 टू मे, यस जून 2018, मोर देन इनफ अभी के लिए। नाउ अदर थिंग्स, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दिस वीडियो गाइस। I'll keep coming frequently on Facebook also or on YouTube. So अभी के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं, right? Thank you, thanks for watching, bye bye.